ممالک دنیا میں ہیں جہاں کے لوگوں کا رہنا سہنا، کھانا پینا سب کچھ عیاشیوں اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا نام ہے۔ کیا کبھی آپ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے چاروں طرف حسین اور خوبصورت لڑکیاں ہوں، یہ لڑکیاں آپ کے اتنے قریب ہوں کہ آپ ان کو محسوس کر سکتے ہوں، بار پبز کا ایک جہان ہو جہاں دنیا کی بہترین شراب ہو اور ساتھ دینے کے لیے حسین ترین خوبصورت لڑکیاں؟ تو جان لیجئے کہ یہ خواب حقیقت ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر زندگی کے خاص لمحات گزارنے کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ ایک ایسے ممالک کا احوال ہے آج کی اس ویڈیو میں جہاں پر زندگی اتنی رنگین اور اتنی دل فریب ہوتی ہے کہ یہاں جانے کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کے کچھ ایسے ممالک کے بارے میں جہاں ہر طرح کی عیاشی آپ کو محض ایک ٹیلی فون کال پر مل جاتی ہے۔ زندگی اتنی حسین اور دل فریب ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت ہوتا ہے۔ کچھ ممالک ایسے جہاں جانا بہت آسان، زندگی بے انتہا رنگین اور راتیں بے انتہا دل فریب۔ تو آئیے چلتے ہیں ان ممالک کے بارے میں تفصیلی احوال جاننے کی طرف۔ ہم بات کریں گے سب سے پہلے بیلاروس کی۔ بیلاروس کا شمار آج پوری دنیا کی ترقی یافتہ اسٹیٹس میں کیا جاتا ہے، لیکن بیلاروس اپنی تمام تر ترقی کے لحاظ سے تو منفرد ہے ہی، لیکن یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر شادیاں نہیں صرف عیاشیاں ہوتی ہیں۔ بیلاروس کے لڑکے اور لڑکیاں 18 سال کی عمر میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور لائف لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں۔ یہ شادیاں کریں یا نہ کریں، اس سے نہ تو ان کے والدین کو فرق پڑتا ہے اور نہ ان کی حکومت کو۔ یہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ خاص وقت بتاتے ہیں اور شادی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور اگر ان کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کی نگرانی بیلاروس کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیلاروس میں زندگی اتنی زیادہ عیاش ہے کہ بیلاروس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک اسکول جانے والا بچہ اور بچی زندگی کے خاص لمحات گزار چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیلاروس میں ان تمام کاموں کی باقاعدہ اسکول میں تربیت دی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ناروے کی۔ ناروے کا نام آپ نے ترقی اور جدت کے لیے تو سنا ہی ہوگا۔ اکنامی کے لحاظ سے بے انتہا مضبوط ملک ناروے، لیکن آپ کو یہ جان کر شدید ترین حیرت ہوگی کہ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر عیاشی اور رنگینی کے نام پر زندگی کی ساری دل فریبیاں موجود ہیں۔ ناروے کا شمار دنیا کے عیاش ترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر عیاشی کی حد تو یہ ہے کہ ناروے کی لڑکی آپ آن لائن بھی منگا سکتے ہیں۔ یہاں آپ لڑکی بک کرائیے، اس کی ہائٹ، کلر، بال سب کچھ اپنی پسند کا لکھیے، آپ کو آپ کی پسند کی لڑکی آپ کی ڈور پر ہی مل جائے گی۔ ناروے کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں شراب کی قیمت انتہائی کم ہے، اور تو اور یہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ناروے کے کسینو آپ سے ادھار بھی لے کر آپ کی زندگی کو حسین اور دل فریب بناتے ہیں۔ ناروے کے ڈسکو کلبز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ناروے کے ڈسکو کلب دنیا کے سب سے زیادہ مشہور ڈسکو کلبز مانے جاتے ہیں، جہاں کی حسین ترین زندگی لوگوں کی یادیں اور رنگینیاں بنانے کا باعث بنتی ہے۔ ناروے ایک ایسا ملک مانا جاتا ہے جہاں کی لڑکیاں بے انتہا بولڈ اور جدید ذہنیت کی مالک ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیاں ناروے آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتی ہیں اور ان کے ساتھ وقت بتانا پسند کرتی ہیں۔ ناروے کی لڑکیاں زیادہ تر طرح کے مردوں سے تعلقات رکھنا پسند کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے میں تمام تر نوکری کرنے والے اور ٹورسٹ لوگ زیادہ تر ناروے کی لڑکیوں کے ساتھ انگیج دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے دنیا کے ایک تیزی سے ترقی کرنے والے ملک دبئی کے بارے میں۔ دبئی کا نام لیا جائے اور عیاشیوں کی بات نہ کی جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دبئی کا شمار دنیا کی عیاش ترین اسٹیٹس میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں سے کوئی عیاشی کے لیے چھٹیاں گزارنا چاہتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی ڈیسٹینیشن یورپ نہیں بلکہ دبئی ہوتا ہے۔ دبئی ایشیا میں بسا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر تمام تر عیاشی کی آپ کو اجازت ہے۔ یہاں پر عیاشیوں کے لیے 7 اسٹار ہوٹل اور ریسورٹس تو موجود ہیں ہی، لیکن اگر آپ یہاں کے بیچز دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں 7 اسٹار ہوٹلز اور ریسورٹس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ زندگی کی تمام تر رنگینی اور دل فریبی پان جمیرہ کے قریب بیچز پہ آپ کو دکھائی دے جائے گی۔ دبئی میں دنیا کی تمام تر عیاش لڑکیاں آتی ہیں، یہاں پر مردوں سے دوستی کرتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، اور بہت زیادہ پرائیویٹ وقت گزارنے کے لیے دبئی میں خاص طور پہ لڑکیوں کو بک کیا جاتا ہے۔ دبئی کی بیلے ڈانسنگ کرتی لڑکیاں نہ صرف آپ کی آنکھوں کو دیکھنے میں بے انتہا خوبصورت لگتی ہیں، بلکہ یہ وقت گزارنے کے لحاظ سے بھی نہایت
अच्छी होती हैं। दुबई के बारे में ये मशहूर है कि दुबई में पूरी दुनिया की मॉडल और एक्ट्रेसेस आती हैं और तमाम तर लोगों को एंजॉय करवाती हैं। दुबई का शुमार आज दुनिया के जहां तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन अमीर तरीन ममालिक में होता है, वहां दुनिया के अय्याश तरीन ममालिक में भी दुबई का नाम सरे फहरिस्त लिया जाता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और एशिया के दीगर ममालिक से लोग दुबई अपनी जिंदगी को रंगीनियों में डुबाने के लिए जरूर जाते हैं। दुबई एक ऐसा मुल्क माना जाता है एशिया को जहां पर अय्याशी की हद यूरोपीय ममालिक से बहुत ज्यादा है। अब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की तरक्की की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा और तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन अगर यहाँ की रंगीनियों, नाइट लाइफ, बार, पब्स, बियर सेंटर और कसिनोज की बात की जाए तो इसके लिहाज से भी न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त माना जाता है। न्यूजीलैंड की नाइट लाइफ बेइंतहा रंगीन है। न्यूजीलैंड में रात होते ही तमाम तर घरों के अंदर से हल्की हल्की टिमटिमाती रोशनियां और हल्की हल्की मौसीकी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। न्यूजीलैंड के तमाम घर रात गए तक पार्टी और बार का क्लब्स बन जाते हैं। न्यूजीलैंड के तमाम तर लोग नाइट लाइफ के बेइंतहा शौकीन हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड में ज्यादातर रातें जागती और रौनक वाली होती हैं। न्यूजीलैंड में दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं जो 7 स्टार या 5 स्टार होटल्स की बजाय ज्यादातर रिसोर्ट्स में और सड़कों पर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ सड़कों पर आपको दुनिया भर का खूबसूरत तरीन हुस्न दिखाई देता है। न्यूजीलैंड की बोल्ड लड़कियां हमेशा टूरिस्ट के आगे पीछे घूमती हैं, जो कि आपको कहती तो ये है कि वो टूरिज्म के लिए आपकी हेल्प करेंगी और आपको न्यूजीलैंड दिखाएंगी, लेकिन दर हकीकत वो आपको जिंदगी के वो लम्हात दिखाती हैं जिनके बारे में आप सिर्फ ख्वाब में ही सोचते हैं। न्यूजीलैंड की लड़कियां बहुत बोल्ड होती हैं। ये तमाम तर टूरिस्टों से दोस्ती करना चाहती हैं। न्यूजीलैंड की अक्सर लड़कियां यहाँ आने वाले टूरिस्ट से दोस्ती करके उनकी साथ शादियां भी करती हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में मर्दों से ज्यादा पैदाइश की शरह औरतों की है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी डेस्टिनेशन माना जाता है जो कि एशियाई मर्दों की पसंदीदा जगह है। यहाँ की लड़कियां उनसे दोस्ती करती हैं, शादी करती हैं और उनके फ्यूचर को निहायत सिक्योर कर देती हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिका के एक बहुत बड़े शहर और तरक्की याफ्ता जगह की, जिसको मैं और आप न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं। न्यूयॉर्क की बुलंद बुलंद इमारतें, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ की इकोनॉमी और बेहतरीन डेवलपमेंट के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन न्यूयॉर्क की अगर नाइट लाइफ की बात की जाए तो दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन और रंगीन नाइट लाइफ आपको न्यूयॉर्क में मिलेगी। न्यूयॉर्क की लड़कियां मुख्तसर लिबास पहनने की शौकीन होती हैं और ये बेइंतहा बोल्ड होती हैं। इनकी बोल्डनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क का शुमार ऐसी जगहों में होता है जहां आपको आम सड़क पर टॉपलेस लड़की नजर आ जाती है। ये लड़कियां जिंदगी के तन्हाई वाले पल गुजारने की बेइंतहा शौकीन होती हैं। ये लंबे कद, सांवले रंग और काली रंगत वाले लड़कों को बहुत पसंद करती हैं और ये तमाम तर खूबियां क्योंकि एशियाई मर्दों में पाई जाती हैं, लिहाजा न्यूयॉर्क की लड़कियां एशियाई मर्दों से दोस्ती करने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती हैं। यही वजह है कि न्यूयॉर्क की कितनी ही डेटिंग एप्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ एशिया में चलाई जाती हैं। यहाँ लड़कियां एशियाई मर्दों से दोस्ती करती हैं, उनको न्यूयॉर्क बुलाती हैं, रोजी रोजगार दिलवाती हैं, उनके साथ खास लिविंग रिलेशन अपनाती हैं और बेइंतहा खुशगवार जिंदगी गुजारने का मौका देती हैं। अगर बार्स क्लब की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा जदीद बार क्लब्स माने जाते हैं। न्यूयॉर्क की अगर बार क्लब्स की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया के सबसे जदीद तरीन बार क्लब्स माने जाते हैं। न्यूयॉर्क के बार क्लब्स का शुमार दुनिया के अय्याश तरीन जगहों में किया जाता है। न्यूयॉर्क के बार क्लब नाम के ही बार क्लब होते हैं, वरना यहाँ आपको खास वक्त बिताने की मुकम्मल तौर पर आजादी होती है। यहाँ की डिस्कोस भी बेइंतहा मशहूर हैं जो कि रात गए तक खुले रहते हैं। न्यूयॉर्क की डिस्कोस में ज्यादातर लड़के और लड़कियां नशा करके डांस करते हैं और डांस ही डांस में क्या हो जाए ये तो हम आपको कह ही नहीं सकते। आखिर आप खुद भी तो बहुत समझदार हैं। अब हम बात करते हैं आज़रबाईजान की। आज़रबाईजान के बारे में कहा जाता है कि इसकी एक सरहद यूरोपीय खत्ते से भी मिलती है, लिहाजा यहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ की बोल्डनेस का अंदाजा किसी भी यूरोपीय ममालिक से जोड़कर लगाया जा सकता है। आज़रबाईजान खूबसूरत तरीन मुल्क माना जाता है। यहाँ पर लड़कियां जो होती हैं उनके बारे में ये आम ख्याल है कि आज़रबाईजान की लड़कियां नहीं बल्कि परियां लगती हैं। ये देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती हैं। यही वजह है कि आज़रबाईजान के ज्यादातर ऐसे इदारे जो कि पब्लिक डीलिंग से मुताल्लिक होते हैं वहाँ लड़कियां नौकरी करती हैं। ये लड़कियां टूरिस्ट से और नौकरी के लिए आने वाले लोगों से बहुत जल्द दोस्ती कर लेती हैं। आज़रबाईजान के ज्यादातर घरों में रेस्ट हाउसेस खुले हुए हैं और यहाँ पर लड़कियां इन रेस्ट
हाउसेज में मुख्तलिफ टूरिस्ट को और नौकरी के लिए आने वाले लोगों को लेकर जाती हैं और उनको जिंदगी की वो तमाम तर सहूलतें और आसाइशें दिखाती हैं जो कि बैरून मुल्क रहकर कोई ख्वाब में ही सोच सकता है। अजरबैजान की लड़कियां बेइंतहा मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी एशियाई मुल्क की हैं, बल्कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि यूरोप की कोई मॉडर्न तरीन लड़कियां हैं। ये लड़कियां अपने पहनावे की वजह से तमाम तर टूरिस्टों को अपनी जानिब कशिश याफ्ता कराती हैं और फिर जैसे ही एक बार टूरिस्ट इनको पसंद कर ले, ये लड़कियां उनसे दोस्ती करती हैं, उनको अजरबैजान घुमाती तो हैं, लेकिन साथ में उनके साथ जिंदगी के वो तमाम तर मजे लेती हैं जिसकी ख्वाहिश हर किसी इंसान को होती है। अब मैं बात करूंगी इटली की। इटली यूं तो अपने जदीद तरीन खानों, अपनी जॉब्स, अपनी तालीम की यूनिवर्सिटियों और दीगर तरक्की याफ्ता चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन अगर इटली की अय्याशी की बात की जाए तो उसमें भी इटली का शुमार दुनिया के बहुत ज्यादा अय्याश ममालिक में किया जाता है। इटली के लोगों के बारे में तो आपने जाना ही होगा कि इटली के लोग निहायत बेशरम और बेबाक होते हैं। यहाँ के मर्द तो मर्द, लड़कियां भी खुद मर्दों को ऑफर करती दिखाई देती हैं। इटली का शुमार ऐसे ममालिक में किया जाता है जहाँ की लड़कियां लड़कों को खुद इन्विटेशन देती हैं और शादी का पैगाम भेजती हैं। इटली एक ऐसा मुल्क माना जाता है जहाँ की ऑर्गेनिक शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। ये शराब खाने ज्यादातर लड़कियां चलाती हैं, जहाँ जाकर आपके साथ ये इतनी करीब हो जाती हैं कि आपको ऐसा लगता ही नहीं कि इनसे आप पहली बार मिले हैं। तो इटली जाएं तो जरा दिल थाम कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती कहीं ऐसा ना हो कि आपका दिल ही चुरा ले। एशिया में बसे एक ऐसे देश की जिसको देखकर यूरोपियन भी शर्मा जाते हैं, ये है मलेशिया। मलेशिया के बारे में ये कहावत मशहूर है कि मलेशिया सिर्फ उन लोगों का मुल्क है जिनके जेब में पैसा है। मलेशिया में अय्याशी के बहुत बड़े बड़े ठिकाने मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया क्या यूरोप के ममालिक से भी मुकाबला करते हैं। मलेशिया की जिंदगी निहायत रंगीन और दिलफरेब है। मलेशिया के अगर आप बीचेस को देख लीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि यूरोप के बीचेस पे भी इतना हुस्न नहीं नजर आएगा जितना आपको मलेशिया में नजर आएगा। यही वजह है कि यूरोप से हर साल लाखों सैयाह मलेशिया आते हैं। मैंने आपको बहुत सारे ममालिक की अय्याशियों और रंगीनियों के बारे में बताया। आप मुझे बताइए कि इनमें से आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है और कहां आप अपने खास लम्हात गुजारने जाना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।